أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ غزوہ تبوک میں ایسا کیا ہوا تھا؟ حضرت قحب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کی توبہ کا واقعہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت قحب بن مالک رضی اللہ عنہ کے پوتے عبد الرحمن نے یہ بات بتائی ہے کہ جب حضرت قحب رضی اللہ عنہ نبینا ہو گئے اس وقت میرے والد عبداللہ بن قحب انہیں ساتھ لے کر جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت قحب بن مالک رضی اللہ عنہ کو غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت قحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایسے کسی غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، البتہ غزوہ تبوک میں ایسا ہو گیا۔ ہاں غزوہ میں پیچھے رہ گیا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے کسی ایک پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ چانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان قریش کے قافلے پر حملے کے لیے نکلے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سامنا توقع کے برعکس دشمنوں سے کروا دیا۔ شب عقبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہموار تھا۔ جب ہم نے اسلام قبول کیا تھا مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس رات حاضری کے عوض میں مجھے بدر کی حاضری نصیب ہو جاتی، اگرچہ میں شرکت کی فضیلت کا تذکرہ لوگوں میں بہت زیادہ ہے۔ غزوہ تبوک میں میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کا واقعہ یہ ہے کہ میں جب اس غزوے میں آپ سے پیچھے رہ گیا تھا اس وقت جتنا طاقتور اور خوشحال تھا اس سے پہلے اتنا کبھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اس سے پہلے میرے پاس کبھی بھی دو اونٹنیاں اکٹھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس غزوے کے موقع پر میرے پاس دو اونٹنیاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید گرمی کے موسم میں غزوہ کیا۔ آپ نے مسلمانوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ اس جنگ کی تیاری کر لیں۔ آپ نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے مسلمان تھے جنہیں کسی رجسٹر میں نوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت قحب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شاید کوئی شخص ایسا ہو جو یہ سوچ کر اس غزوے میں شریک نہ ہو کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس بارے میں وحی نازل نہیں ہوگی، آپ سے اس کی غیر حاضری کا معاملہ مخفی رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت کیا جب پھل اور سائے بہترین ہو گئے تھے اور میں ان میں مشغول تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے ساتھ دوسرے مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کر لی اور میں یہ کام آج کل پر ڈالتا رہا، کچھ نہیں کر سکا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ میں جب چاہوں گا آسانی سے ایسا کر لوں گا۔ میں یہی سوچتا رہا اور لوگوں نے تیاری بھی کر لی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان روانہ ہو گئے، لیکن میں کوئی تیاری نہیں کر سکا۔ اگلا دن آ گیا، میں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا۔ روز ایسا ہی ہوتا رہا۔ مسلمان تیزی سے دشمن کے مقابل پہنچ گئے۔ انہوں نے جنگ کی تیاری
कर ली। मैंने इरादा किया कि अब मैं सवार होकर उन तक पहुंच जाऊंगा। काश मैं ऐसा कर लेता, लेकिन ये बात मेरे नसीब ही में नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले जाने के बाद मैं लोगों में आता तो मुझे बहुत अफसोस होता कि ये सब वो लोग थे जो मुनाफिक थे, या जहाद में शिरकत से माजूर थे। तबूक पहुंचने तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा ख्याल नहीं आया। एक दिन जब आप तबूक में कुछ लोगों के दरमियान तशरीफ फरमा थे, आपने पूछा, कहा बिन मालिक को क्या हुआ है? बनु सलमा के से तल्लक रखने वाले एक साहब ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी खुशहाली की वजह से नहीं आ सका। हजरत माज बिन जबीर रजी अल्लाह ने उस शख्स से कहा, तुमने बहुत गलत बात कही है। अल्लाह ताला की कसम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके बारे में सिर्फ बेहतरीन सोचते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इसी दौरान दूर से एक सफेद पोश आता हुआ दिखाई दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अबू खशामा होना चाहिए। वो अबू खशामा इंसार ही थे। ये वही साहब है जिन्होंने एक साख खजूरें सदका की थी तो मुनाफिकीन ने उन्हें ताने दिए थे। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह कहते हैं, जब मुझे पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ ला रहे हैं तो मुझे दोबारा परेशानी लाहक हो गई। मैंने इस झूठे उज़र के बारे में सोचना शुरू कर दिया जिसे बयान करके मैं आपकी नाराजगी से निजात हासिल कर सकूं। मैंने अपने घर वालों से भी मदद मांगी। जब मुझे ये बताया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचने ही वाले हैं तो वो तमाम झूठे बहाने मुझे भूल गए और मुझे ये शऊर आ गया कि मैं अपने किसी झूठे बहाने के जरिए निजात हासिल नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे सच बात कहने का इरादा किया। अगली सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। आपका ये मामूल था कि आप किसी सफर से वापस आते थे तो सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ लाते थे, वहां 2 रकत अदा करते और फिर लोगों से मिलने के लिए बैठ जाते। जब आप तशरीफ फरमा हुए तो मैं पीछे रह जाने वाले लोगों आपकी खिदमत में हाजिर होने लगे और कस्में उठाकर उज़र पेश करने लगे। उनकी तादाद 80 से कुछ ज्यादा थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़ाहिरी उज़रों को कबूल किया, उनसे बैत ली और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की। उनके बातन का मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। जब मैं हाज़िर खिदमत हुआ और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो आप मुस्कुराए जैसे कोई नाराज शख्स मुस्कुराता है। आपने हुक्म दिया, आगे आ जाओ। मैं आगे आकर आपके सामने बैठ गया। आपने मुझसे पूछा, पीछे क्यों रह गए थे? तुमने तो सवारी खरीदी नहीं थी। मैंने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपकी बजाय किसी दुनियादार आदमी के पास बैठा होता तो मुझे पता है कि मैं उज़र पेश करके उसकी नाराजगी से बच जाता। लेकिन अगर आज मैं आपके साथ झूठ बोलकर उसके जरिए आपको राजी करूंगा तो अनकरीब अल्लाह ताला आपको मुझसे नाराज कर देगा। लेकिन अगर मैं अब आपके सामने सच्ची बात करूंगा तो आप मुझसे नाराज होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आखिरकार अल्लाह ताला मेरा अंजाम बेहतरीन करेगा। अल्लाह ताला की कसम, मेरा कोई उज़र नहीं है। अल्लाह ताला की कसम, आपसे पीछे रह जाने के वक़्त मैं जितना ताकतवर और खुशहाल था इससे पहले कभी नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने सच कहा है।
फिर आपने मुझे हुक्म दिया, अब तुम जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे बारे में फैसला कर दे। मैं वहां से उठ गया। बनु सलमा से तल्लक रखने वाले कुछ लोग भी मेरे साथ उठे और मेरे पीछे आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, अल्लाह ताला की कसम, हम नहीं जानते कि तुमने इससे पहले भी कोई गुनाह किया हो। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उज़र पेश कर देते, जैसे पीछे रह जाने वालों दूसरे लोगों ने उज़र पेश किए थे, और तुम्हारी बख्शिश के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआए मग़फ़िरत ही कर देना काफी था। तो हज़रत काब रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ताला की कसम, वो लोग मुझे मलामत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने सोचा कि मैं वापस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता हूँ और अपनी ही बात की तकज़ीब कर देता हूँ। फिर मैंने उन लोगों से पूछा, क्या किसी और के साथ भी मेरे जैसा मामला पेश आया है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, 2 आदमियों के साथ तुम्हारे जैसा मामला हुआ है। इन दोनों में से तुम्हारी तरह कोई उज़र पेश नहीं किया और उन दोनों को भी वही हिदायत की गई है जो तुम्हें की गई है। मैंने पूछा, क्या वो दोनों कौन हैं? उन्होंने बताया, मुराद बिन राबिया आमरी और हलाल बिन उम्मिया कज़ाई है। उन्होंने मुझे 2 ऐसे आदमियों के बारे में बताया जो दोनों नेक थे और उन दोनों का ग़ज़वा बदर में शिरकत का शरफ हासिल था। उनका तरीक़ाकार अब्तबाह था। जब उन्होंने मुझे उन 2 हज़रात के बारे में बताया तो मैं घर वापस चला गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हमारे साथ बातचीत करने से मना कर दिया। आप से पीछे रह जाने वालों में से सिर्फ हम 3 के बारे में ये हुक्म था। लोग हमारे साथ बातचीत से किनारा करने लगे और हमारे लिए अजनबी हो गए, यहाँ तक कि हम ही इलाके के बारे में मुझे यूं महसूस हुआ कि अपने इलाके में मुझे यूं महसूस होने लगा कि इलाका नहीं है जैसे जिसे हम जानते हैं, कि ये हमारा इलाका नहीं जिसे हम जानते हैं। इसी तरह 50 दिन गुजर गए। मेरे दोनों साथी गोशा नशीन हो गए और अपने घर में बैठकर रोते रहे। हम तीनों में से ज्यादा नौजवान और ताकतवर मैं ही था। बाजमात नमाज पढ़ने के लिए आया करता था और बाजार में भी घूमा फिरता था, लेकिन मेरे साथ कोई बात नहीं करता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे। नमाज के बाद जब आप तशरीफ फरमा हुए थे तो मैंने आपको सलाम करता था और इसका जायजा लेता था। आपने इस्लाम का जवाब देने के लिए अपने मुबारक होंठों को जनबीश दी है या नहीं। मैं आपके करीब खड़ा होकर नमाज पढ़ा करता था और चोरी छुपे आपकी तरफ देखा करता था। जब मैं अपनी नमाज की तरफ मतवज्जा होता था तो आप मेरी तरफ देखा करते थे, और जब मैं आपकी तरफ मतवज्जा होता था तो आप अपनी तवज्जा दूसरी तरफ कर लेते थे। हमारे साथ मुसलमानों की लाहक तवील हो गई। तो एक दिन मैं जाते हुए अबू कताता के बाग की दीवार पर चढ़ा और मेरे चचाजाद थे वो, और मेरे महबूब तरीन शख्स थे। मैंने उन्हें सलाम किया। अल्लाह ताला की कसम, उन्होंने मुझे सलाम का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे कहा, ए अबू कतादा, मैं आपको अल्लाह ताला के नाम की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आप ये जानते हैं कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ? वो खामोश रहे। मैंने उन्हें दोबारा कसम दी तो वो फिर खामोश रहे। मैंने उन्हें फिर कसम दी तो वो सिर्फ ये बोले, अल्लाह ताला उसका रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैं वापस मुड़ा और बाग से बाहर आ गया। मैं मदीना मुनव्वरा के बाजार से गुजर रहा था कि उसी दौरान एक नबती
नब्ती ये वो लोग हैं जो शाम से तल्लक रखते हैं और खुराक फरोख्त करने के लिए मदीना मुनव्वरा आए हैं। ये पूछते फिर रहा था वो शख्स कौन है कहा बिन मालिक तक मेरी रहनुमाई करेगा। लोगों ने उसे इशारे के जरिए मेरे बारे में बताया। वो मेरे पास आया और उसने हुजान के गवर्नर का खत मुझे दिया। मैं पढ़ना जानता था। मैंने वो खत पढ़ा तो उसमें ये तहरीर था कि ये लिखा था, अम्मा बाद हमें पता चला है कि तुम्हारे आका ने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है। अल्लाह ताला ने तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के आलम में रहने के लिए पैदा नहीं किया। तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। जब मैंने ये पढ़ा तो ये सोचा कि ये दूसरी मुसीबत है। मैंने वो खत एक तंदूर में फेंक दिया और वो खत जल गया। 40 दिन गुजर गए, हमारे बारे में कोई वही नहीं नाज़िल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मेरे पास आया। पैगाम देने वाला बोला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये हिदायत की है कि तुम अपनी बीवी से अलग रहो। मैंने कहा क्या मैं इसे तलाक दे दूं या फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसने जवाब दिया तुम इससे अलग रहो और उसके करीब ना जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हिदायत मेरे दोनों साथियों को भी भिजवाई। मैंने अपनी बीवी से कहा तुम मेके चली जाओ और उस वक्त तक वहां रहो जब तक अल्लाह ताला इस मामले का फैसला न कर दे। मेरे एक साथी हलाल बिन उमिया की अहलिया के उसकी बीवी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हलाल बिन उमिया बहुत बूढ़े हैं, उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है कि आप इस बारे में को नापसंद करेंगे कि मैं उनकी खिदमत करती रहूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन वो तुम्हारे करीब ना आए। उसकी बीवी ने अर्ज की, अल्लाह ताला की कसम वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की कसम, जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है उस दिन से लेकर आज तक वो रोए ही जा रहे हैं। हज़रत कहब रज़ियल्लाहु कहते हैं, मेरे घर में किसी ने मुझसे कहा कि तुम भी अपनी बीवी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग लो। आपने हलाल बिन उमिया की बीवी को उनकी खिदमत करने की हिदायत की है। मैंने जवाब दिया, मैं इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि जब मैं आपसे इस बारे में इजाजत मांगूंगा तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, क्योंकि मैं एक नौजवान आदमी हूँ। इस तरह 10 दिन गुजर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हमसे बातचीत करने से भी जो मना किया था, इसे 50 दिन गुजर गए थे। 50वें दिन की सुबह मैंने अपने घर की छत पर फजर की नमाज अदा की और अभी मैं इस हालत में बैठा हुआ था जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है। मुझे अपने आप से उलझन हो रही थी और जमीन अपनी तमाम कुशादगी के बावजूद मुझ पर तंग हो गई थी। इसी दौरान मैंने किसी शख्स को सुलह पहाड़ से बुलंद आवाज में ये ऐलान करते हुए सुना, ए कहब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैं सजदे में गिर गया और मुझे अंदाजा हो गया कि अब आसानी नसीब होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाने के बाद लोगों को ये बताया कि अल्लाह ताला ने हमारी तौबा कबूल कर ली है। तो कुछ लोग हमें खुशखबरी सुनाने के लिए आए। कुछ लोग खुशखबरी सुनाने के लिए मेरे दोनों साथियों की तरफ चले गए। एक शख्स घोड़े पर सवार होकर मेरी तरफ आया और कबीला असलम से तल्लक रखने वाला एक शख्स दौड़कर मेरी तरफ आया, पहाड़ पर चढ़ गया। उसकी आवाज
گھڑ سوار سے تیز تھی. میں نے جس کی آواز سنی جب وہ مجھے خوشخبری سنانے کے لیے میرے پاس آیا تو اس کی خوشخبری کی وجہ سے میں نے اپنے کپڑے اسے دے دیے. اللہ تعالیٰ کی قسم اس دن میرے پاس صرف وہی کپڑے تھے. میں نے عرائیت کے طور پر 2 کپڑے لے کر انہیں پہنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا. لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے رہے اور توبہ کی قبولیت پر مجھے مبارکباد دیتے رہے اور یہ کہتے رہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے، اس پر تمہیں مبارک ہو. یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی موجود تھے. طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہوئے اور لپک کر میری طرف آئے. انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی. اللہ تعالیٰ کی قسم ان کے علاوہ اور کوئی مہاجرین کھڑا نہیں ہوا. راوی کہتے ہیں حضرت کعب رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے عالم میں چمک رہا تھا. آپ نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو کہ جب سے تم پیدا ہوئے ہو آج سے زیادہ بہترین دن تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہوا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک یوں روشن ہوتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو. یہ بات ہم سب کو معلوم تھی. جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی توبہ قبول ہونے کی خوشی میں میں اپنے مال کو صدقے کے طور پر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنا کچھ مال اپنے پاس رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو میں نے عرض کی میں خیبر میں اپنی اراضی کو اپنے پاس رکھتا ہوں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات ملی ہے اور میری توبہ قبول ہونے کے بعد اب میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا جب تک میں زندہ رہوں گا.